happened was when we reached the campus, the police were already there. They were prepared to take us, to not let us to protest. What happened inside the campus was the security guards and the police came inside the campus, manhandled the students who were protesting. They didn't even let us to chant a single slogan. When we just started to raise our slogans, to raise our demands, to show our resistance, to show our existence, the police attacked us. They brutally manhandled us. They dragged us. Most of the guards were fixated to the Muslim girls, those who were wearing hijabs. They dragged us by the hijabs and they kicked us by the boots. And we were asking that not to do that. Like we were on fasting. We can see that the video clips. It's clear in the video clips that most of the girls who were dragged out from the campus were drained. They were exhausted physically because they were attacked that way. We can also see the hypocrisy of the Delhi police that outside the campus, when the media was there, the police were asking us to get into the bus because most of the students were not allowed to enter the campus. The police were asking us to get into the bus because you guys were not having permission. And we raised our questions like, what is their permission to get into our campus to stop us from protesting? We were there just to peacefully protest and show our remarks, show our resistance against the CAA. But what is their right to do like this? The militarization of the Delhi police inside the campus has to be stopped. We know how they have changed the narrative during the anti-CIA movement 4 years back, how they have attacked. Also, we know how they have targeted the Muslim girls who have organized, who were the leaders of the protest then. We know how the Sangh Parivar have done the cyber attacks. But we remind them that this won't let us back from our movement. Their shameful act will not retrieve us from our course to do this. Inshallah, I will remind that during the bulldozer movement of Yogi Adityanath, our leader Afrin Fatima said that we won't shed a single tear upon this. That is, we won't shed a single tear upon this. We will be in the streets. We will occupy the streets if they are continuing this. Inshallah. स्वागत है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने को और इस 10 साल के अंतराल में ऐसे जन विरोधी और काले कानूनों की भरमार आई और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा देश भर में, जिसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, वो था CAA। और 2019 का जो मुद्दा है वो सिर्फ 2019 का नहीं है, वो RSS और BJP के इन 100 सालों के बीच जो एक हिंदू राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें इनका पूरा मकसद है कि कैसे मुस्लिम एक सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में, और ये लगातार अटैक किया जा रहा है। और सिर्फ ये अटैक एक कानून लाके नहीं किया जा रहा है, हमारे कैंपसेस से, हमारे इंस्टीट्यूशन से मानव जैसे जो फंड्स होते थे उनको हटा दिया जाता है। मौलाना आज़ाद नेशनल एजुकेशन को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जा रहा है। CAA क्यों जरूरी, उसका इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ क्यों पूरी जनता या पूरे जो स्टूडेंट्स हैं कैंपसेस के क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक और अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि जो देश एक सेकुलर स्ट्रक्चर के रूप में अभी तक हमारे सामने रहा, वहाँ एक पर्टिकुलर धर्म को एक्सक्लूड करके उसको टारगेट करके
एक ऐसे देश की कल्पना की जा रही है जहां पर ये शो किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कि आने वाले समय में इस कंट्री में एक रिलीजन कैसे कंट्रोल करेगा, और वो रिलीजन ये शो करता है कि और जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, उनके स्पेसेस नहीं बचेंगे। और लगातार ये अटैक किया जा रहा है। 2019 में जिस तरह से सीए कानून आया, उसके खिलाफ जनता सड़कों पे उतरी, स्टूडेंट सड़कों पे उतरे। कितने स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनके ऊपर सीए लगाया गया, पत्रकारों के ऊपर सीए लगाया गया। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। न्यूज़ क्लिक, मखतूम मीडिया जैसे कितने न्यूज चैनल्स हैं जिनके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। अब हमें फिर से जिस इम्प्लीमेंटेशन की जो खबरें आई, सरकार जो लेके आया उसका नोटिफिकेशन, फिर से जो 2019 में जो हमारा एजुटेशन था, उम्मीद करते हैं कि वो फिर वैसा ही रहेगा। और जैसे किसान आंदोलन हुआ और उनको अपने बिल वापस लेने पड़े, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सीए के इम्प्लीमेंटेशन को हम पूरी तरीके से नकारे करेंगे, वापस करेंगे। कल इसके बाद क्वेश्चन आंसर का आपका तकरीबन सारे ही ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो हुकूमत के रवैये से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फिलहाल इस कानून को वापस ले रही है। तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग क्या आगे इस तहरीक को और आगे लेकर के जाएंगे, और आगे आप लोगों का क्या स्टेप है, आप लोग इस पर क्या करने वाले हैं, इसके बारे में जरा बताइए। ये हुकूमतें जो डिसाइड करती हैं वो अपने मंशूर के हिसाब से डिसाइड करती हैं, मगर जहाँ तक डेमोक्रेसीज की बात है, डेमोक्रेसीज में आवाम की चलती है। तो आवाम जो चाहती है, आवाम की जो मर्जी होती है, उसके हिसाब से आगे के नैरेटिव्स भी सेट होते हैं, आगे के फैसले भी होते हैं। तो हम समझते हैं कि 2019 का जो मूवमेंट रहा और CA/NRC का, एंटी CA/NRC का, वो आवाम का मूवमेंट रहा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिक्टेट नहीं किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उसको खड़ा नहीं किया, कोई अल्टीमेटम पास नहीं हुआ, कोई नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल नहीं किया गया, बल्कि हर गांव, हर गली, हर कस्बे से लोग खड़े हुए और उसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला। आखिरी में जो है जब कोविड का लॉकडाउन हो गया तो उसकी वजह से वो मूवमेंट बंद हो गया। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे अवाम के मूवमेंट रहे, जैसा फार्मर्स प्रोटेस्ट हम देखें 2 साल पहले जिस तरीके से मजबूत अंदाज में फार्मर्स खड़े हुए और हुकूमत के फैसले बदले। हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंट्स अलग अलग मुकामात से इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कर सकते हैं, डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे तमाम जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट भी जारी है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि पब्लिक आएगी सामने और इसके खिलाफ जो है तमाम आवाम मिलके ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहा उसकी मुखालिफत करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो एथोस है, उसकी जो लाइफ है, उसको फिर बाकी बहा देने की कोशिश करेगी। क्या 2019 में जिस तरह से प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, क्या उसी तर्ज पर दोबारा से शुरू किए जाएंगे? ये कहना कि कोई जो है 2019 में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए गए थे, 2019 में जो प्रोटेस्ट रहे वो हिंदुस्तान की तारीख के बहुत ही खूबसूरत तारीख का हिस्सा है। हम उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, अलग अलग मुकामात पे एक सेलिब्रेशन का माहौल था। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या किसी को
कोई पॉलिटिकल पार्टी की अपोजिशन की जा रही, बल्कि ऐसा मकामात रहे जहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस ली जा रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के ताल्लुक से समझाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रियम्बल है वो प्रियम्बल के ताल्लुक से भी बहुत ही तफसीली अंदाज में समझाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सेलिब्रेशन था। वो अलग अलग कोनों से लोग उठे, आवाज़ उठाए। हम समझते हैं कि अभी भी लोग उठ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। लोगों की डेमोक्रेसी है, लोगों की मर्जी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे और आवाज़ उठाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहना या जमा करना मुश्किल है, किसी भी मूवमेंट को चलाना, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को। हम समझते हैं कि तमाम जो फोर्सेस हैं जो इस आइन में मानते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं और इस देश के मुस्तकबिल को हम सेकुलर और इक्वालिटी के बेसिस पे जांचना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि तमाम लोग आए और इसकी सख्त मुखालिफत करें और हुकूमत को मजबूर करें कि वो इस काले कानून को वापस लें। आपका प्रश्न ये था कि मतलब 2019 में जिस तरह से हमारा एजुकेशन था, क्या वो आप जो इम्प्लीमेंटेशन के नोटिफिकेशन के बाद वैसे वैसे जारी रख सकते हैं या नहीं? जाहिर सी बात, उससे और ज़्यादा संख्या में हम आ सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद जब किसान आंदोलन आपने देखा कि किस तरह से किसान सड़कों पर उतरे और लगातार कितने महीनों तक वो प्रोटेस्ट चला और फिर सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। सीए के इम्प्लीमेंटेशन के नोटिफिकेशन के बाद भी हम सब उसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास नज़ीर है और उसी को देखते हुए हमें विश्वास है कि ये जो कानून है वापस लिया जाएगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया जाएगा। उससे भी तेजी से हम लोग उनकी पूरी टैक्टिक्स है, ये कैसे जो आप देख रहे हैं उसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि इम्प्लीमेंटेशन की खबरें आ रही हैं और जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिश करने की बात करता है, इससे पहले आपको पता है कि 19 के इलेक्शन से पहले पुलवामा अटैक हो जाता है। तो पूरी तरीके से ये अपनी सारी टैक्टिक्स और अपना रहे हैं कि कैसे जनता को भ्रमित किया जाए और वो दूसरे मुद्दों पर बात ना कर सके, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात ना कर सकते, एजुकेशन पे बात ना कर सके और सारे जितने भी मुद्दे हैं उन पे बातचीत ना की जा सके। कहा जा रहा है मजहब की बुनियाद पर जब देश का बंटवारा हो गया तो इस्लामिक कंट्री है, फिर अगर मुसलमानों के ऊपर ही मुसलमान क्यों जुल्म करेगा? जो दूसरे धर्मों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, तो मुसलमानों को इससे क्या दिक्कत होगी? बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, या फिर जो आप जिसकी बात करते हैं कि एक रिलीजन के बेस पर नहीं चलता, वो सेकुलर है। जब हम सेकुलर हैं तो जब हम नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर धर्म को हम एक्सक्लूड क्यों करेंगे? सिर्फ हमारे पास जो प्रोसिक्यूटेड है वो क्या मुसलमान नहीं? तो नागरिकता अगर आप दे रहे हैं, अगर प्रोसिक्यूशन के बेस पे दे रहे हैं, तो मुसलमान एक्सक्लूड क्यों है? शुक्रिया बहुत बहुत।